See, in the first lecture, we have seen there about that is what is thermodynamics. And in thermodynamics, we say that thermodynamic is concerned with the energy changes in physical and chemical transformation. Means basically in thermodynamics, we are going to deal with the energy changes occur during physical and chemical process. Then after that, we have seen the term we are going to use in the thermodynamic, that is system and surrounding. System and surrounding. System means what? The part which is under our observation, the part of the universe on which we are focusing are called as a system, and all other remaining part outside the system, all other remaining part outside the system are called as a surrounding. So this part is called as system, other part is called as surrounding. So what is system? A part of the universe under thermodynamic investigation is called as system, and all other part of the universe outside the system are called as surrounding. Then we have seen that we have three type of the system, and three type of the systems are open system, closed system, and isolated system. Now, what is open system here? In open system, we'll go for definition of the open system. So I'll just go on the next page. See, in the open system means what here? That is system which exchange both energy and matter with surrounding are called as open system. And for open system, we give the example that hot tea kept in the cup and cup is open. Closed system, a system that exchange energy and not the matter with surrounding are called as a closed system. And here we give the example that hot coffee is kept in the cup but cup is covered with a saucer. And isolated system, a system that does not allow the exchange of either energy or matter with the surrounding are called as an isolated system. And here we give the example that hot coffee is kept in the thermos flask. And then we have seen the two properties of the system, extensive property and intensive property. Now, what is extensive property? Property which depends on the amount of matter present in the system. Property which depends upon the amount of matter present in a system are called as the extensive property. And example for extensive is said mass, volume, internal energy, heat capacity, and number of mole. Intensive property, property which independent means does not depend on amount of matter are called as intensive property. And intensive properties are pressure, temperature, surface tension, viscosity, melting, and boiling point. So till here we have done. And I also said one more point. I gave the example of density. And in the example I have said density is a intensive property. Why? Because density is a ratio of mass upon volume. Mass is an extensive property. Volume is also extensive property, and ratio of the two extensive properties is an intensive property. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बाकी और किसी के लिए नहीं. मतलब ऐसा नहीं बोलोगे कि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक्सटेंसिव नहीं. द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव, अगर अब तुम्हारे पास पेन वगैरह रहेगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ratio of two extensive property is the intensive property. And which is the example? Density. Density is equal to mass upon volume. Mass is an extensive property, volume is also extensive property, but ratio of the two is density, and density is the intensive property. Means density does not depend on amount of matter. Density does not depend on amount of matter. And one more point related to this I have to speak here, that I'll explain. I'll just write on one paper and then you all can share with you all.
1 minute. See here, I'll just write down that 2 point over here. The first point is, this point they have not mentioned in our textbook, but they were there, and many times they ask the question based on these intensive properties are not additives. Intensive properties are not additive. Now, not additive means what? Because see, suppose for example, if I take 1 ml of water, 1 ml of water, and for 1 ml of water, its boiling point is 100°C. Means if I take 1 ml of water, its boiling point is 100°C. Now suppose if I take another 2 ml of water, this is first sample, this is second sample. If I take 2 ml of another sample of the water, its boiling point is also going to be 100°C. So for first ml of the water, the boiling point is 100. Second 2 ml of the water I have taken, and its boiling point is also 100. Now if I take this 1 ml water and this 2 ml water, means I will add 1 ml of the first experiment and 2 ml of the second experiment. So total I have here 3 ml of the water, but 3 ml of the water will have the boiling point also equal to 100°C. Means, see, we added 1 ml and 2 ml. Is the boiling point is increased? No. So that's why we say that intensive properties are not additive. मतलब intensive properties को हम लोग add नहीं कर सकते. मतलब 1 ml water का boiling point 100 है, 2 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 है. इसका मतलब अगर दोनों को ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्या? 200 होगा क्या? नहीं. The intensive property remains the same because they do not depends on amount of matter. That's why this sentence is very, very important. Intensive properties are not additive. Similarly, based on that second point, I'll write extensive properties. Properties are additive. Extensive properties are additive. Like for example, if I say we are having 1 gram of water, 1 gram of the water, that is mass. So they have given here the mass. We are having 1 gram of the water. 1 gram of the water has volume 1 ml. मतलब अगर हमारे पास water का mass 1 gram है और 1 gram का volume 1 ml है, तो if I take, this is first sample, if I have a second sample, there I am having again 1 gram of water, and 1 gram of the water has a volume 1 ml. So this is volume. So in the first experiment, mass of the water 1 gram and volume is 1 ml. Second time again I am taking 1 gram of the water and volume is 1 ml. If I will add this 1 gram and this 1 gram, so total mass become 2 gram. The mass has increased, and then here volume is also going to become 2 ml. So mass and volume are getting added up, and therefore we can say that extensive properties are additive. मतलब extensive property को हम लोग add कर सकते हैं. वो 1 gram plus 1 gram total has become 2 gram. So amount अगर यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे mass भी बढ़ रहा है. यहाँ पे वॉल्यूम अगर ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है. मतलब मास वॉल्यूम, दे आर विच प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव. लेकिन यहाँ पे देखो 1 ml स्टार्टिंग का, 2 ml बाद का ऐड कर दिया, बट बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव. सो दीज आर द पॉइंट which they have not mentioned in our textbook. और मैं डेंसिटी का भी वापस लिख के बोल देता हूँ. डेंसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला. थोड़ा शेक हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ मास इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी.
mass is extensive property and volume is also extensive property. Mass is a extensive property, volume is a extensive property, and उनका जो density बनेगा, the density is intensive property, because this question quite a number of time they have been asked in the exam. CET वगैरह JEE NEET में they always ask. So mass is extensive property, volume is extensive property, और उनका जो ratio आपको मिलेगा that is density, density is a intensive property. Okay, so basically here we have finished with the extensive and intensive property. What are intensive में ध्यान में रखना है I मतलब independent. I stand for independent. Independent मतलब does not depend. So what are the intensive property? Property which does not depends on amount of matter. What is extensive? Property which depends upon the amount of matter are called as the extensive property. So with this you are finished with extensive and intensive property. Now we'll move on the next heading. So I'll just go for the textbook content first. Okay, after that we will be going for the next heading, and the next heading is called as a state function. Next heading is called as a state function. Now what is the meaning of the state function? I'll explain that first. One minute. देखो, you can just read in that first paragraph there. In the first paragraph, they have mentioned there. Suppose here, like we are having, I'm just showing, a gas is enclosed in a cylinder. मतलब हमारे पास gas है. A gas is enclosed in a cylinder. मतलब एक cylinder के अंदर जो gas भरा हुआ है, and cylinder is fitted with a movable piston, और ऊपर piston लगा के रखा हुआ है. Suppose, और वहां पे जो गैस है वो गैस का प्रेशर है 1 bar. See, pressure can be measured in atmosphere, pressure can be measured in millimeter of mercury, pressure can be measured in centimeter. There are many units of measurement of pressure. Actually हम लोग 11th standard में बार बार atmosphere word use किया था, but here they have given the pressure in 1 bar. So we have got some gas filled in the cylinder, मतलब सिलेंडर के अंदर गैस रखा हुआ है और गैस का प्रेशर है 1 bar P1, वॉल्यूम है 1 dm क्यूब एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन. तो गैस का प्रेशर 1 बार है, वॉल्यूम 1 dm क्यूब है और टेम्परेचर 300 केल्विन है. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम. ये हमारा इनिशियल स्टेट हुआ, मतलब सिलेंडर के अंदर गैस फिलअप करके रखा हुआ है, गैस का प्रेशर है 1 बार, गैस का वॉल्यूम है 1 dm क्यूब और गैस का टेम्परेचर है 300 केल्विन. दिस इज द इनिशियल स्टेट, करेक्ट. और इनिशियल स्टेट, एंड बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मतलब हम लोग ने बोला कि प्रेशर कितना है हमारे पास 1 बार है, वॉल्यूम कितना हमारे पास है 1 dm क्यूब है और टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है. तो ये जो वैल्यूज है दे आर कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम. दे आर कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम. नाउ बेसिकली व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम? अभी सिस्टम मतलब हमें मालूम है जो पार्ट हमारे ऑब्जर्वेशन अंडर है, जिस पार्ट को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम लोग सिस्टम. ओके, तो सिमिलरली हियर, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन अ सिस्टम, मुझे अगर किसी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि वहां पे जो गैस रहेगा उसका प्रेशर कितना रहेगा, वहां पे जो गैस रहेगा उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, वहां पे जो गैस रहेगा उसका टेम्परेचर कितना रहेगा. ये सारे प्रॉपर्टीज मुझे मालूम होना चाहिए और उन्हें मैं बोलूंगा स्टेट ऑफ अ सिस्टम. देखो, हमें लर्न करना है स्टेट फंक्शन, बट स्टेट फंक्शन समझने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए स्टेट ऑफ अ सिस्टम.
तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ऑन द पेपर और बाद में फिर विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन. Okay, let's just explain here. Suppose for example we are having, मतलब say मैंने this is we are having a cylinder fitted with a piston. एक मतलब ये piston है. So here some gas is enclosed in a cylinder. और यहाँ का जो गैस है उसका प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है. प्रेशर इज 1 bar. Volume V1 is 1 dm cube. Temperature T1 is equal to 300 Kelvin. So initially we are having some gas here in the cylinder. ये हमारा जो गैस है वो हमारे लिए काम करेगा सिस्टम का, मतलब इसके ऊपर हम लोग फोकस करें. तो ये पार्ट हमारे ऑब्जर्वेशन अंडर है. द पार्ट विच इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड एज अ सिस्टम. और सिस्टम का हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? प्रेशर. सिस्टम का हम लोग मेजर कर रहे हैं वॉल्यूम. और सिस्टम का हम लोग मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर. ये जो सारे पॉइंट्स है ये हमारे दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल स्टेट. दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल स्टेट. ये हमारा इनिशियल स्टेट है. और ये जो मतलब इनिशियल स्टेट एक्सप्लेन कर, हमने प्रेशर कितना लिखा हुआ है 1 bar, वॉल्यूम कितना लिखा हुआ है 1 dm cube, टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है 300. सो दे डिसाइड द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. मतलब अगर मैंने बोला कि यहाँ पे जो गैस है उसका मुझे प्रेशर मालूम है, उसका मुझे वॉल्यूम मालूम है, उसका मुझे टेम्परेचर मालूम है, मतलब आई नो द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. मतलब अगर यहाँ पे जो गैस मैंने एनक्लोज किया हुआ है और गैस के बारे में अगर मुझे पूरा इंफॉर्मेशन मालूम है, देन दैट मीन्स आई कैन से व्हाट, आई नो द, मुझे ये गैस का क्या मालूम है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम मालूम है. लाइक फॉर एग्जांपल देखो, अगर तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो तो वी ऑलवेज ऑब्जर्व यू ऑल. मतलब हम डेली आपको ऑब्जर्व करते हैं कि कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन मस्ती कर रहा है, कौन लेट आ रहा है, कौन क्या क्या चीजें कर रहा है, मतलब कितना सिंसियर है. तो जब पेरेंट्स डे रहेगा तो पेरेंट्स डे के दिन जब पेरेंट्स मिलने के आएंगे तो नो दे विल से कि मेरा बच्चा कैसा है. देन विल स्टार्ट डिस्क्राइबिंग यू. ये मस्ती करता है, पढ़ाई नहीं करता है, ये दूसरों को परेशान करता है. दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम. मतलब तुम किस चीज का काम करते हो? सिस्टम का. और तुम्हारे बारे में जब सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो उसे क्या बोलना है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम. मतलब किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए जो पॉइंट हमें लगेंगे उसे बोलना है. मतलब तुम्हारे बारे में अगर मुझे एक्सप्लेन करना है, तुम्हारे बारे में मुझे क्या मालूम होना चाहिए? कि तुम्हारा अटेंडेंस मालूम होना चाहिए, रेगुलर हो कि नहीं हो. अगर रेगुलर हो तो ऑन टाइम क्लास में आते हो कि नहीं आते हो. अगर आने के बाद होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो. क्लासेस के एग्जाम देते हो कि नहीं देते हो. एग्जाम देते हो तो अगर एग्जाम में, तो ये सारे तुम्हारे लिए क्या होंगे? सिस्टम. तो अगर मैं, इफ आई कंसिडर स्टूडेंट एज अ सिस्टम, तो स्टूडेंट के लिए मुझे सारे पैरामीटर्स मालूम होने चाहिए स्टूडेंट का स्टेट एक्सप्लेन कर. तो ऐसे यहाँ पे तो जो पॉइंट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम. तो सिमिलरली हियर वी हैव टेकन गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर. तो गैस का प्रेशर हमें मालूम है, गैस का वॉल्यूम हमें मालूम है, गैस का टेम्परेचर हमें मालूम है. So this is called as the initial state of system. This is called as the initial state of a system. Now अभी मैं क्या करूंगा? सपोज ये गैस अगर एक्सपांड हो जाएगा तो पिस्टन विल मूव इन द विच डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन. यू नो व्हेन गैस एक्सपांड इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज. तो गैस अगर एक्सपांड हो जाएगा तो इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज. तो पिस्टन विल मूव इन द वी डायरेक्शन अपवर्ड. पिस्टन ऊपर चला जाएगा. पिस्टन ऊपर गया मतलब वॉल्यूम हैज इंक्रीज. तो आई कैन से हियर वॉल्यूम जो 1 dm क्यूब था इट मे चेंज टू 2 dm क्यूब. वॉल्यूम बढ़ गया. पिस्टन ऊपर जा रहा है मतलब बाहर का प्रेशर कम हुआ. तो मे बी प्रेशर जो पहले 1 एटमॉस्फेयर था तो प्रेशर हैज बिकम 0.5 बार. प्रेशर पहले 1 बार था, अभी 0.5 बार हुआ. टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर विल रिमेन द सेम. हम लोग दो ही पैरामीटर चेंज करें. तो मैंने क्या किया, मुझे एक गैस जो है उसको एक्सपांड करना था, गैस का साइज बढ़ाना था. इसलिए क्या किया, ये जो बाहर का जो पिस्टन लगा हुआ था, पिस्टन के ऊपर का प्रेशर मैंने कम कर दिया. जो 1 बार था वो 0.5 किया.
तो बाहर का प्रेशर कम होने के कारण इमीडिएटली गैस एक्सपांड हुआ। तो जब गैस एक्सपांड हुआ तो वॉल्यूम हैज इंक्रीज, बट टेम्परेचर को मैंने चेंज नहीं किया, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, दो ही पैरामीटर चेंज किए, प्रेशर चेंज कर दिया इसलिए वॉल्यूम बढ़ा। तो ये अभी मेरा रहेगा, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज अ फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो मेरा ये था इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अभी ये मेरा है फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सो व्हेन आई गो फ्रॉम इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम to a final state of a system, then it is called as a state function. Then it is called as a, that property is called as a state function. So basically what is state function? State function means what? Any property. State function means what? Any property of system, मतलब हमारे सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी है, any property of a system which depends on initial and final state. Any property, I'll just 1 minute, any proper, हमारे सिस्टम का कोई भी प्रॉपर्टी, any property of a system which depends on initial and final state are called as a state function, are called as a state function. मतलब हमारा इनिशियल प्रेशर ये था, वॉल्यूम ये था, टेम्परेचर ये था, और बाद में ये प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम हो गया, तो ये अगर हमें इनिशियल स्टेट मालूम है और अगर हमारे फाइनल स्टेट अगर मालूम है, तो ये हमारा क्या रहेगा? स्टेट फंक्शन. So basically what is state function? Any property which depends on the initial state and final state are called as a state function. It, उसको ये आगे कंटिन्यूशन में लिख रहा हूं, it does not depend on, it does not depends on path, it does not depends on path. Now it does not depends on path means what? देखो अब अगर मतलब यहाँ पे देखो प्रेशर 1 बार था, वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब था और टेम्परेचर 300 था, और यहाँ पे प्रेशर 0.5 है, लेकिन 0.5 कैसे हुआ? 0.5 मतलब कम करके हुआ, ज्यादा करके हुआ, या वॉल्यूम यहाँ पे 2 आया है लेकिन वहां 2 डीएम क्यूब क्यों आया? मतलब पहले 5 से 2 किया या 3 से 2 किया या 1 से 2 किया, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये हमारा फाइनल स्टेट है, लेकिन ये फाइनल स्टेट कैसे आया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अस इज व्हाट? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. How we are bringing out the change is not important. That is called as a state function. So what is state function? Any property of the system which depends on initial and final state of a system and does not depends on the path are called as a state function. मतलब सिस्टम का जो प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा लेकिन वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आर कॉल्ड एज अ स्टेट फंक्शन. मैं और एक एग्जांपल देता हूं समझने के लिए. देखो फॉर एग्जांपल अगर ऐसे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ये डायग्राम में ये रहा हमारा ए मतलब इनिशियल पॉइंट, डी मतलब फाइनल पॉइंट. तो यहाँ का फॉर एग्जांपल जो प्रेशर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ का प्रेशर 1 बार है और यहाँ का प्रेशर 2 बार है, और मैंने एक ही पॉइंट लिया है. तो यहाँ से का प्रेशर इनिशियल 1 बार था, यहाँ का प्रेशर 2 बार है, लेकिन यहाँ का प्रेशर जो 2 बार है वो कैसे 2 बार हुआ? मतलब 5 से 2 हुआ या 1 से 2 हुआ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बस यहाँ का प्रेशर 2 बार है और यहाँ पे प्रेशर 1 बार था, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमारे लिए ए से इनिशियल स्टेट खाली इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फाइनल स्टेट इंपॉर्टेंट है. पाथ मतलब अगर मैंने बोला कि मैं ए से ये वाया मतलब ए तो बी की तरफ जा रहा हूँ लेकिन बाय दिस रूट, या मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ बाय दिस रूट, तो ये मेरे पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है. मुझे खाली इतना ही फोकस करना है कि मुझे मेरा इनिशियल स्टेट मालूम है, मुझे मेरा फाइनल स्टेट मालूम है, मैंने चेंज कैसे किया, वेदर आई हैव गॉन फ्रॉम पाथ 1 और मैंने वेदर आई हैव गॉन बाय पाथ 2, मेरे लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो दे आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन. So what is state function? Any property of the system which depends upon the initial state and final state are called as a state function which does not depend upon the path. मतलब path के ऊपर depend नहीं करेंगे. एक और एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें. फॉर एग्जांपल सर हाँ बोलो.
फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये स्टेट फंक्शन काय आहे? स्टेट फंक्शन हो, म्हणजे कुठल्या प्रॉपर्टी आहे फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये? कोणतं फर्स्ट एक्झाम्पल? हाच हाच गॅसवाला. इथे हो हो हो. म्हणजे हे कसं माहितीये, ही आपली सिस्टम आहे बरोबर. ही आपली सिस्टम आहे आणि सिस्टमचे हे जे आहेत ना, यांना म्हणतो आपण स्टेट ऑफ अ सिस्टम. म्हणजे मला आपल्याला एखादी सिस्टम सांगायची असेल, म्हणजे इथे गॅस आहे, मग गॅसचं प्रेशर किती आहे P1, गॅसचं व्हॉल्यूम किती आहे V1, गॅसचं टेम्परेचर किती आहे T1. हे आपली काय झाली इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम. नंतर आपण गॅसला एक्सपांड केलं, मग ही आपली इनिशियल स्टेट झाली बरोबर. आपण गॅसला एक्सपांड केलं, मग ही आपली कोणती स्टेट होणार फायनल होणार. मग फायनल आपलं प्रेशर किती असेल P1, व्हॉल्यूम किती असेल V2 आणि टेम्परेचर किती असेल T2. मग आपण इनिशियल पासून फायनलला कसे गेलो हे महत्वाचं नाही. आपल्याला फक्त काय माहिती पाहिजे की ही आपली इनिशियल स्टेट आहे आणि ही आपली फायनल स्टेट आहे. आपण कशा प्रकारे चेंज करतो ते महत्वाचं नाहीये, म्हणजे पाथ इम्पॉर्टंट नाही, फक्त काय महत्वाचं आहे इनिशियल स्टेट महत्वाची आहे आणि फायनल माहिती आहे. त्याला म्हणतो आपण स्टेट फंक्शन. याला म्हणतो आपण स्टेट ऑफ अ सिस्टम. म्हणजे एखाद्या सिस्टम बद्दल जेव्हा आपण डिटेल सांगतो त्याला काय म्हणतो आपण स्टेट ऑफ अ सिस्टम. मग ही झाली आपली इनिशियल स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ही झाली आपली फायनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम. आणि या इनिशियल पासून फायनल पर्यंत आपण कसं चाललोय त्याला काय म्हणतो आपण स्टेट फंक्शन. आपलं हे स्टेट फंक्शन पाहिजे, पण स्टेट फंक्शन म्हणजे काय आहे हे तुम्हाला कळायला पाहिजे म्हणून मी सांगितलं की ही आपली इनिशियल स्टेट आहे, ही आपली फायनल. तसंच मला इथे पण सांगायचं आहे, ही आपली इनिशियल स्टेट आहे आणि ही आपली फायनल स्टेट आहे. मग मी इनिशियल पासून फायनल कडे या मार्गाने गेलो काय तर या मार्गाने गेलो काय मला ते महत्वाचं नाहीये. माझी ही इनिशियल स्टेट होती आणि ही माझी फायनल स्टेट होती. मी कसा बदल केला, बदल कसा केला हे महत्वाचं नाही. म्हणजे कसं आता काय काय मुलं 11th खूप मस्ती करायची, पण आता 12th मध्ये आल्यानंतर जरा थोडी इम्प्रूव्ह झाले, हे चांगली झालेत. मला माझा कन्सर्न काय ठीक आहे 11th कशी पण असू दे, आता 12th मध्ये चांगली झालेत ना, 12th मध्ये चांगलं लक्ष देता येत ना, ते मला महत्वाचं आहे. त्यांच्यामध्ये हा बदल कोणी केला, हा बदल त्यांच्यामध्ये कशामुळे झाला ते महत्वाचं नाहीये. म्हणजे कोणी त्याला मारलं पण असेल, त्यांना कोण ओरडलं पण असेल, त्यांना काही टॉर्चर पण केलं असेल, पण आपल्याला ते महत्वाचं नाही. आपल्यासाठी महत्वाचं काय इनिशियली ते लोक बेकार बिहेव केले नो प्रॉब्लेम, पण आता चांगले बिहेव करतात ते महत्वाचं आहे. तो बदल कोणी केला कोणामुळे झाला ते महत्वाचं नाही. त्याला काय म्हणायचं स्टेट फंक्शन, त्याला म्हणायचं स्टेट फंक्शन. कळलं? ते पूर्ण हॅलो. प्रॉपर्टीला म्हणतो स्टेट फंक्शन. हा म्हणजे आपण जर कसं एका हा हा की व्हॉल्यूम किंवा प्रेशरला आपण स्टेट फंक्शन म्हणतो असं नाही नाही ना? नाही 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 हे सगळं ह्या म्हणजे हे सिस्टमसाठी लागणारे पॅरामीटर्स आहेत. हो हो स्टेट म्हणजे स्टेट फंक्शन म्हणजे कसं माहिती आहे, आता साधा एक एक्झाम्पल घे. म्हणजे एखाद्या वेळेला म्हणजे समजा तू एखादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करतोस बरोबर आहे. एखादा हो. एक्सपेरिमेंट तू परफॉर्म करतोयस, मग एक्सपेरिमेंट चालू असताना तू एक्सपेरिमेंट चालू केलास आणि तुझा एक्सपेरिमेंट संपला. मग मी फक्त कशावरती फोकस करेन, चालू केलास आणि संपवलं हेच मला महत्वाचं आहे. तू कशा प्रकारे केलंस ते महत्वाचं नाहीये. बरोबर. म्हणजेच काय ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत कोणत्या प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर हे सगळे स्टेट फंक्शनच आहेत. म्हणजे आपल्याला जेव्हा आपण फक्त इनिशियल पॉईंट बघतो आणि फायनल पॉईंट फक्त बघतो, त्यांच्यामध्ये बदल कशा प्रकारे होतो हे आपण त्याला महत्व देत नाही. म्हणजे याला काय म्हणतो आपण स्टेट फंक्शन म्हणतो. सर, म्हणजे प्रोसेसला स्टेट फंक्शन म्हणतात का? हा त्या प्रोसेसला स्टेट फंक्शन म्हणतात. अच्छा, हा तेच मला पाहिजे होतं. हा त्याला स्टेट फंक्शन म्हणतात. ओके सर. पण इव्हन त्या टर्म्स आहेत ना टर्म, म्हणजे आता पुढे पुढे आपल्याला ते कन्सेप्ट येत जाईल की अशा आपल्या वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज पण आहेत, त्या प्रॉपर्टीजना पण स्टेट फंक्शन म्हणतो म्हणजे पुढे जाऊन. पण ते तेव्हा एक्झाम्पल जेव्हा येईल ना तेव्हा तुला मी सांगेन. फक्त आता सध्या काय करा स्टेट फंक्शनचं मिनिंग ठेवा. स्टेट फंक्शन म्हणजे काय, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट अँड डिपेंड्स अपॉन द फायनल स्टेट. मधली पाथ आपल्याला इम्पॉर्टंट नाही, पाथ इम्पॉर्टंट नाही. जेव्हा आपण पाथला इम्पॉर्टन्स देतो तेव्हा त्याला म्हणतो आपण पाथ फंक्शन. म्हणजे हे दोन टर्म आहेत, स्टेट फंक्शन म्हणजे काय आणि पाथ फंक्शन म्हणजे काय. तर स्टेट फंक्शन म्हणजेच काय, तर वेन इट डिपेंड म्हणजे आपली जी एखादी प्रोसेस आहे ती कोणावर डिपेंड करते, फक्त इनिशियल स्टेट वरती आणि फायनल वरती डिपेंड करते बरोबर. त्याला म्हणतो आपण स्टेट फंक्शन. आणि जेव्हा आपण पाथला डिपेंड करू ते पाथ फंक्शन, ते पुढे आणखीन येईल परत. कळलं का रे मग? हो सर. ओके ठीक आहे, पुढे कंटिन्यू करू. पण हा स्टेट फंक्शन जो आहे कन्सेप्ट हा परत पुन्हा येत जाईल. ठीक आहे. ओके. नाउ आय जस्ट शेअर विथ द टेक्स्ट बुक फॉर यू ऑल फॉर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट फंक्शन. पण तुम्हाला स्टेट फंक्शन कळलं? पुन्हा एकदा बघा. एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which depends on the initial and final state and does not depends upon the path are called as a state function. Okay. 1 minute, I'll share the textbook with you all.
Okay, so now here, see, they have shown the diagram here in the different way. That this is the, in the diagram if you will make notice, this is the initial state. म्हणजे ही आपली सिस्टम, म्हणजे आपण सपोज गॅस एन्क्लोज इन सिलेंडर and initial pressure are P1, volume is V1, temperature is T1 and N. So this is called as the initial state and this is called as the final state. So I'm going from initial state to final state. So it is called as I'm changing the state. I'm changing the state. So it is called as a state function. Okay, now they have shown the definition here. बस नका लिहू, बस झालं. ठीक है. So what is state function? They have given the definition. The property which depends on the state of a system and independent of the path followed to attain it are called as state function. It depends upon the state of a system, and in fact it depends upon the state of a system. System ची current state काय आहे आणि ती कोणत्या state ला जाणार आहे. म्हणजे it depends upon the state of the system independent of the path followed to attain it are called as the state function. तर तुम्ही असेही सांगू शकता, property which depends upon the initial state and final state does not depends upon the path are called as a state function. पण याचं मी तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल देतो. प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. म्हणजे कसं बघा, फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे एका ग्लासामध्ये पाणी आहे, त्या पाण्याचं प्रेशर किंवा त्या पाण्याच्या वरती प्रेशर आहे 1 ऍटमॉस्फिअर. त्या पाण्याचं व्हॉल्यूम तुम्ही घेतलंय 1 लिटर. त्या पाण्याचं टेम्परेचर आहे 25 डिग्री. ह्या तुमच्या प्रॉपर्टीज आहेत. पण ते पाण्याचं प्रेशर 1 ऍटमॉस्फिअर कसं आहे, ते पाण्याचं व्हॉल्यूम 1 लिटर कसं झालं, ते पाण्याचं टेम्परेचर 300 कसं आलं हे इम्पॉर्टंट नाही. बस पाणी तुमच्या समोर आहे, त्या पाण्याचं प्रेशर आहे 1 ऍटमॉस्फिअर, त्या पाण्याचं व्हॉल्यूम आहे 1 लिटर आणि त्या पाण्याचं टेम्परेचर आहे 300. हे महत्वाचं आहे. पण तो पाण्यामध्ये कसा चेंज झाला हे महत्वाचं नाही. त्याला त्यांनी सांगितलंय इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम अँड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड टू अटेन इट. म्हणजे तुम्ही तिथे कसं पोहोचलात, म्हणजे आधी पाण्याचं प्रेशर किती होतं, आधी पाण्याचं टेम्परेचर किती होतं हे महत्वाचं नाही. आता तुमच्या समोर पाणी ठेवलेलं आहे, त्या पाण्याचं प्रेशर आहे 1 ऍटमॉस्फिअर, इट्स व्हॉल्यूम इज 1 लिटर अँड इट्स टेम्परेचर इज 300. दॅट्स ऑल. हाऊ वी हॅव रीच टू दॅट स्टेट इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके, सो इज इट क्लिअर? Now after state function, now we'll be going for the next part. We'll be going for the next part after state function. So I'll just सर तुम्ही माईक म्यूट. one minute. Yes. Sorry. हाँ. येस, आवाज येतोय का बरोबर? आवाज येतोय का रे बरोबर? हो सर. हाँ ठीक है. Okay, ठीक है. I'll start now.
नाव विल गो फॉर द पाथ फंक्शन. बघा त्यानं प्लीज रिस्पेक्ट अदर्स. तुम्हाला लर्न करायचं नका करू सर, पार्टनर बघतायत बॅकग्राऊंड मध्ये. हा ठीक आहे. पाथ फंक्शन. What is path function? The property which depends upon the path are called as the path function. Which are the path function? We are having work and heat. But how the work and heat are the path function, that we will see later on. Now you just remember only two concepts: state function and path function. What is state function? Any property. आपण फक्त असं meaning learn करतोय. Now we are just learning the meaning. What is the meaning of the term state function and what is the meaning of the term path function? And then later on, मतलब बाद में हम लोग ये term को apply करेंगे अपने chapters में. So what is state function? Any property of the system which depends upon the initial state and final state are called as a state function. And any property which depends on one minute, any property which depends upon the path are called as a path function. And हमारे पूरे chapters में दो ही path functions है. कौन से? The one path function we are having here as a work, and second path function we are having over here as the heat. So work and heat are the only path function. लेकिन ये path function कैसे आए, क्यों आए, that we will see afterward. अभी इतना ही meaning ध्यान में रखना कि meaning of the state function and meaning of the path function. I'll just repeat once again and then I'll go on the next topic. What is state function? The property which depends upon the state of a system and independent of the path followed to attain it are called as the state function. और तुम तुम्हारे own word में भी लिख सकते हो, the property which depends upon the initial state and the final state of the system and does not depends upon the path are called as a state function. And what is path function? The properties which depends upon the path are called as the path function, and path functions are work and heat. Okay, बाकी के ये chapters में आगे जो जो terms आएंगे, they all are state function. Only work and heat are the path function. Sometimes, many time in the multiple choice question, they ask which of the following are the path function or which of the following are the state function. तो हमारे पूरे बुक में वर्क एंड हीट ये दो ही पाथ फंक्शंस है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शन है. सो नाउ आई विल गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. वन मिनिट, जस्ट होल्ड. जन ड्रॉइंग काढलं जरा इरेज कर रे, असं नेहमी नेहमी मी इरेज करा, म्हणजे स्वतःहून इरेज करा बघू. इरेज करा बघू, कोणी काढलंय त्याने इरेज करा. सर नंतर पुन्हा सगळं रेकॉर्डिंग बघ तेव्हा कळेल बरोबर. प्लीज फास्ट. Yes. Now we'll start with the next meaning over here. The next meaning is called as a thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium. Now, what is the meaning of that thermodynamic equilibrium? I'll explain the meaning first and then I'll come back for the definition. Okay, 1 minute. I'll explain first that. Okay. See here, suppose now I'm explaining the topic here as a thermodynamic equilibrium. Now suppose we are having here one cylinder. Cylinder is filled with some gas and fitted with the piston. Now what happened? The gas has a pressure P, and on the piston there's an external pressure.
This is called as a P external. Always remember that in this chapter we are going to come across with two pressure. यहाँ पे जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर रहेगा P एंड बाहर का जो प्रेशर रहेगा वो एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा। अगर ये दोनों प्रेशर अगर इक्वल है, मतलब गैस का प्रेशर और प्रेशर विच इज देयर ऑन द पिस्टन, बाहर का प्रेशर, दोनों प्रेशर अगर इक्वल है, दोनों प्रेशर अगर इक्वल है, तो पिस्टन मतलब ये जो पिस्टन है तुम्हारा, इट विल नाइदर मूव अप, इट विल नॉर मूव डाउन। मतलब पिस्टन विल नॉट मूव अप और डाउन, और पिस्टन अगर ऊपर होगा नीचे नहीं जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, प्रेशर यहाँ के जो वॉल्यूम रहेगा और यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर अगर रहेगा 1 बार, यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा फॉर एग्जाम्पल 1 डीएम क्यूब एंड टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल रहेगा 300 केल्विन, all these properties will not change. Why? Because the piston is not moving. So what we want to say, when the pressure of the gas and external pressure are equal, the piston is not moving. Now when the piston is not moving, all these properties will not change, and therefore we can say the system can be called as what? Thermodynamic equilibrium. So basically what is thermodynamic equilibrium? When the thermodynamic property, ये जो है इन properties को हम लोग बोलते हैं thermodynamic property, pressure, volume, temperature, all these properties are called as a all these properties are called thermodynamic property. And because the piston is not moving up and down, these properties are not changing, and therefore these properties will remain constant. And that's why we can say our system is at thermodynamic equilibrium. So basically, what is thermodynamic equilibrium? So equilibrium means what? As long as the values of thermodynamic property remain constant, as long as the values or the properties of the system remain constant, that means we can say that system is at thermodynamic equilibrium. But now if suppose मैंने अगर बोला for example we allow the gas to expand, अगर गैस expand होगा तो यहाँ पे क्या होगा? गैस expand होगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, अभी ये वॉल्यूम होगा V2, गैस एक्सपांड हो गया। तो गैस अगर एक्सपांड हो जाएगा तो पिस्टन विल मूव इन द विच डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो जब तक पिस्टन मूव हो रहा है तब तक यहाँ का प्रेशर, यहाँ का वॉल्यूम, यहाँ का टेम्परेचर चेंज होते रहेगा। मतलब वी कैन से दैट सिस्टम इज ए नॉन इक्विलिब्रियम। मतलब जब पिस्टन ऊपर ऊपर जा रहा है तब तक यहाँ का प्रेशर, तब तक यहाँ का वॉल्यूम, तब तक यहाँ का टेम्परेचर, सारी चीजें चेंज होती रहेंगी। जब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है मतलब सिस्टम इज एट नॉन इक्विलिब्रियम। लेकिन वो एक बार वापस यहाँ पे आ गए, एक बार यहाँ पर वापस यहाँ पे आएगा, अभी पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा है, पिस्टन अभी नीचे भी नहीं आ रहा है, पिस्टन अभी ऊपर भी नहीं जा रहा है। मतलब नाउ हियर अगेन, अभी यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा V2, यहाँ का प्रेशर होगा P2 और यहाँ का टेम्परेचर T2, ऑल दिस वैल्यूज विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब अभी फॉर एग्जांपल वॉल्यूम हुआ 2 डीएम क्यूब, 1 मिनट थोड़ा ब्लर दिख रहा है, अभी यहाँ पे वॉल्यूम हुआ 2 डीएम क्यूब, मतलब मे बी प्रेशर हुआ 0.5 बार और टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर 300 ही रखा है, बट अभी ये हमारे फाइनल कंडीशन। तो ना अभी तक जब तक मैं पिस्टन ऊपर नीचे नहीं करूंगा तब तक ये वैल्यूज कैसे रहेंगे? कांस्टेंट ही रहेंगे। तो जब ये वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं, दे चेंज नहीं होते टाइम के साथ, देन वी कैन से सिस्टम इज एट thermodynamic equilibrium. So what is the meaning of thermodynamic equilibrium? That when thermodynamic properties, मतलब ये जो हमारे properties है, pressure, volume, temperature, I'll just write down here, when thermodynamic properties, when thermodynamic properties do not change with time, when thermodynamic properties do not change with the time, then we can say the system can be called as what? Thermodynamic equilibrium. मतलब जब तक पिस्टन यहाँ से फिक्स लगा हुआ है, पिस्टन ऊपर भी नहीं जा रहा है, पिस्टन नीचे भी नहीं जा रहा है, ये प्रॉपर्टीज के वैल्यूज कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, दैट इज सेड इज कॉल्ड एज ए इक्विलिब्रियम। और जब पिस्टन ऊपर ऊपर जाने लगेगा तो वैल्यू सारे चेंज होते जाएंगे, तो सिस्टम इज कॉल्ड एज ए नॉन इक्विलिब्रियम। लेकिन एक बार वापस अगर पिस्टन कांस्टेंट हो गया
पिस्टन ऊपर भी नहीं जा रहा है, पिस्टन नीचे भी नहीं जा रहा है, तो ऑल दिस प्रॉपर्टीज विल रिमेन कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. सो व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? व्हेन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, मतलब हमारे ये जो प्रॉपर्टीज है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, उनको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. व्हेन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज do not change with the time, then the system is at thermodynamic equilibrium. Okay, so I'll just share the textbook and you can learn definition from there, and then we'll go ahead. Okay, here thermodynamic equilibrium. See here in this paragraph, a system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function, मतलब उसका pressure, temperature, volume do not change with the time. Okay, a system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function do not change with the time. तो उनको स्टेट फंक्शन बोलो, उन्हें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बोलो, पर ये जब प्रॉपर्टी जब चेंज नहीं होंगे, दैट मीन्स वी कैन से आवर सिस्टम इज एट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? A system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function do not vary with the time. Then system is called as thermodynamic equilibrium. Okay, so you have understood the meaning. What is thermodynamic equilibrium? A system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function do not change with the time are called as a thermodynamic equilibrium. Okay, so we have finished with this term. Now we'll be going on the next heading. The next heading is, yes, here what is equilibrium? Equilibrium means what? मतलब हमारे जो भी प्रॉपर्टीज है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमने गैस में सिलेंडर को अगर एक्सप्लेन कर दिया है, तो वहां के गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. तो जब तक ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहे, हमारी सिस्टम कौन से कंडीशन में रहेंगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी. सो प्लीज रीड वंस अगेन डेफिनेशन. A system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function do not vary with the time. Okay, now I'll go for the next heading. प्रोसेस. ऑल प्रोसेस तो हमारे नहीं हो गए, लेकिन एटलीस्ट एक प्रोसेस तो हम लोग कर सकते हैं. द फर्स्ट वन, प्रोसेस एंड इट्स टाइप. प्रोसेस एंड इट्स टाइप. द फर्स्ट वन is, now basically what is a process here? Process means what? They have given their meaning. What is meaning of process? A transition from one equilibrium state to another equilibrium state is called as a process. अभी हम लोग जस्ट एग्जांपल में देखा कि इनिशियल हमारा वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P1 था. देन वी आर गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट. फिर वहां का प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था, टेम्परेचर T2 था. सो व्हेन वी गो फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, हाउ वी आर गोइंग, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस. मतलब हम लोग वन इक्विलिब्रियम स्टेट से सेकेंड इक्विलिब्रियम स्टेट तक कैसे जा रहे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस. So what is process? A transition from one equilibrium state to another is called as a process. Transition from one equilibrium state to another is called as a process. And now here there are different type of the process. The first one is isothermal process. Second one is isobaric or isobaric process. Third one is isochoric process. Fourth one is adiabatic process. And the fifth one is a reversible process. These five process we have to study in detail. Okay. But अगर मैं आज स्टार्ट करूंगा तो शायद नहीं हो पाएगा. It will go beyond 1 hour. तो ठीक है, एटलीस्ट मैं एक काम करता हूँ. Today I will explain at least
one complete part about the isothermal. Isothermal के बारे में हम लोग complete करते हैं, and then but isothermal will take a little long time. Okay, so what is isothermal process? But have you understood what is the meaning of process? A transition from one equilibrium state to another is called as a process. Transition from one equilibrium state to another is called as a process, correct? Now the different process are there. 1 minute. I will just explain about the first one. It will go little ahead, but it's okay. At least one point हमारा हो जाएगा. Now I'll show you the example. I'll share one paper with you. Or 1 minute. Okay. So what is process? When we go, see, this is our one equilibrium state, and this is our second equilibrium state. So going from one equilibrium state to second equilibrium state is called as a process. And I think the other part I will do it in the next lecture only because it will take a little long time. So we'll stop it over here. And Vishnu sir has said, you all, I think 6 o'clock, you all are having the biology lecture. Okay. Now do not exit immediately. Now tell me if anyone has any doubts or difficulty. So I'll just clear the doubts or difficulty if anyone has. Come on, please please put your audio on and ask me your doubts and difficulty. Come on. Yes, those who have any doubts, so which concept I learned today? We have learned about the state function. What is state function? The value depends upon the initial state and final state. What is path function? Value depends upon the path. And then we are done with the thermodynamic equilibrium. It is only these 3 points are done today. Anyone has any doubt? हाँ बोला हाँ. सर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम को एक मिनट आवाज नहीं येत आहे. हाँ बोला. हाँ बोला. सर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर को स्टेट वेरिएबल्स बोल सकते हैं सर? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा क्लियर. थोड़ा और लाउडली बोल सकते हो या टेक्स्ट करो मैसेज, मतलब जो भी तुम्हारा पॉइंट है वो टेक्स्ट करो. हाँ बोलो. Please other do not exit. Let the person ask his or her question and we'll clear that and then we'll end the meeting. हाँ बोलो या टाइप करके भेज दो. हाँ 1 मिनट. अगर किसी को डाउट है तो अपना ऑडियो ऑन करो और मुझे डाउट पूछो. यस बोल सकते. थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज को स्टेट वेरिएबल भी बोल सकते. मतलब ये जो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम है, they either we can call them as a thermodynamic property or we can call them as a state function or we can also call them as a state variable. ये correct है. We can also call them as a state variable because system को describe करते हैं, so they can be called as a state variable. correct है. और किसी को डाउट है? स्टेट वेरिएबल मतलब वही, मतलब अगर मैंने गैस को सिलेंडर के अंदर लिया हुआ है तो गैस का प्रेशर कितना है, गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस का टेम्परेचर कितना है. तो गैस का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर मुझे मालूम है, तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को ही हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. प्रेशर टेम्परेचर गैस को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेशर कितना है मेजर करना पड़ेगा, वॉल्यूम कितना है मेजर करना पड़ेगा, टेम्परेचर कितना है मेजर करना पड़ेगा. सो ऑल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर कॉल्ड एज अ वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? Okay, so in the evening at 6 o'clock you all are having biology lecture
and please be on time. And see, some you are sitting at home, then also you will take long time to log in. See, you all know that the lecture is supposed to start at 3 o'clock. Please, within 1 or 2 minutes, you also will get joined. Some people take a very long time to join, so please join at sharp proper timing. Okay, so we'll stop it over here and we'll continue. But whatever we have all done, please go through them, and maybe today evening I'll post the notes. जो thermodynamics अपना chapter चल रहा है, उसके notes में थोड़े तुम्हें post कर देता हूँ, तो at least वो notes से revise करना start कर दो, ठीक है? और टेक्स्ट बुक तो तुम्हारे पास डाउनलोड किया रहेगा ही रहेगा. Okay, I'll stop it over here. We'll continue next time. Thank you.